डॉल्फिन इतना इम्पोर्टेंट है, खास करके गंगा के डॉल्फिन जिसे हम सोर्स बोलते हैं। Today I visited the National Dolphin Research Center in Patna, Asia's first dedicated center for studying and conserving freshwater dolphins, especially the Gangetic River dolphins. The center was inaugurated on March 4, 2024 as a hub for research and conservation of river dolphins and the broader aquatic ecosystems. The Gangetic River dolphin, locally known as Susu, is India's national aquatic animal and is classified as endangered under the IUCN Red List and protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. These dolphins are freshwater dolphins, one of only 4 such species in the world found in India, Nepal, and Bangladesh. They are nearly blind and use echolocation to navigate and hunt fish underwater. In India, there are approximately 6,000 to 6,300 Gangetic dolphins left, with Bihar holding around 2,200 to 2,500 of them in its river stretches like the Ganga and its tributaries. These dolphins are important indicators of river health where dolphin thrives and the river's ecosystem is comparatively healthier. The National Dolphin Research Center (NDRC), located near Patna University campus on the Ganga river bank, is meant to support scientific research on dolphin behavior, habitat, and threats, monitor water quality and aquatic biodiversity, create awareness and community training, especially for fishermen, and how to protect dolphins during fishing activities, serve as a base for students, researchers, and conservationists. However, as of now, the center is still ramping up, with infrastructure ready but research work and full operation yet to begin due to staffing and equipment needs. River dolphin faces major threats, including pollution, habitat fragmentation from bridges and dams, fishing net entanglements, and poor river health, which has caused their population and habitat to shrink dramatically over past decades. Laws such as Wildlife Protection Act 1972 impose strict penalties for harming or killing dolphins, up to 3 years imprisonment and fines, because they protect the species. In Bihar, conservation efforts also include areas like Ramsila Gangetic Dolphin Sanctuary, a 60-kilometer protected stretch of river that supports a rich diversity of wildlife along with dolphins. उसके संरक्षण के लिए बनाया गया है। मतलब डॉल्फिन इतना इम्पोर्टेंट है, खास करके गंगा के डॉल्फिन जिसे हम सोर्स बोलते हैं। ये सोर्स और कहीं नहीं मिलता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में मिलता है, अदरवाइज पूरे ब्रह्मांड में ये स्पीशीज कहीं नहीं मिलती। गंगेटिक डॉल्फिन, दैट इज प्लाटानिस्टा गंगेटिका, ये पूरे वर्ल्ड में किसी भी रिवर में नहीं मिलता है, सिर्फ यही मिलता है। इसका एवोल्यूशनरी ट्रेंड तो पढ़ने का है, जानने का है, लेकिन मैं संक्षेप में बताता हूँ कि यही मिलता है। और चूंकि नदियों में पानी इतना कम गया और नदियों पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जितने ज्यादा बढ़ गए, वाटर सरफेस पर इतने ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ गए, नदियों में डैम, बराजेज, कई तरह की एक्टिविटीज आ गई। इसके चलते डॉल्फिन इतने खतरे में है कि उसे बचाने के लिए 2009 में इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया। इसलिए घोषित किया गया कि अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई हम टैग मार्क दे देंगे तो लोग इसको समझेंगे और हम समझाने में सफल भी होंगे। तो 2009 से इसे राष्ट्रीय जलीय जंतु बोला जाता है और हर एक साल 5 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। उस राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस में स्पेशली इस हाल में कई सारे मछुआ भाइयों को बुलाते हैं जो बेसिकली मछली मारते हैं। पटना के पास, हाजीपुर के पास, बक्सर के पास, भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव और सो ऑन रिवर्स में। तो मैं उनसे कांटेक्ट करके उनको बुलाता हूँ और उनको कई तरह के ट्रेनिंग देता हूँ कि आपको करना क्या है, कैसे आप डॉल्फिन को बचा पाएं। उसी तरह से यही मछुआरे जब सॉफ्ट सेल एंड हार्ड सेल टर्टल जब इनके जाल में इंटरव्यूल हो जाते हैं तो उसके लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि किस एनिमल को पकड़ना और किसको छोड़ देना है। पकड़ने का मतलब कि उसको, जैसे मान लीजिए कि 8 या 9 केजी का कोई टर्टल अगर मिल जाता है, कछुआ, सॉफ्ट सेल टर्टल, जो कि अंडा देने वाला है अगले सीजन में, आप उसको पकड़ करके कहाँ डालेंगे, किस जगह पर ले जाएंगे जहां पर वो आसानी से अंडा दे और लोग उसको उस अंडे को नहीं देख पाए। ये सारी चीजें हैं जो कि इस केंद्र में होता है। उतना ही नहीं,
ये डॉल्फिन को एक अम्ब्रेला स्पीसीज मान करके इसके साथ ओटर का भी रिसर्च होना है। अभी कैबिनेट ने करीब करीब 45 पद इस केंद्र के लिए सृजित किया है। आजकल में ही बहुत सारे काम होने हैं। उसके बाद एक्टिविटीज हमारी शुरू हो जाएगी। एक डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम भी अभी बिहार सरकार शुरू कर रही है। उसके लिए भी लगभग 1 करोड़ रुपए इस केंद्र को स्वीकृत किया है। तो ये सारी एक्टिविटीज में गंगा के डॉल्फिन को टॉप में रख करके हम दिखाएंगे कि गंगा की बायोडाइवर्सिटी कैसे है, कितनी फीसेज है। मुझे याद है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था पटना विश्वविद्यालय में, तो उस समय 106 प्रजाति की मछलियां नदियों में मिलती थी, खास करके गंगा में, और वो भी दीघा से लेकर के फतुहा तक। आज स्थिति हो गई है कि सिमट करके, और उस समय इन्वेसिव स्पीसीज गंगा में एकदम नहीं था, एक भी विदेशी मछली नहीं था, शून्य। आज 76 स्पीसीज बच गए हैं गंगा में। मैंने पिछले 25 साल का मैं डाटा रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक बच्चा ने PhD किया है, पटना यूनिवर्सिटी में सबमिट किया है, उसे डिग्री अवार्ड हुआ है। 76, आप समझ लीजिए कि 30 स्पीसीज है ऑलरेडी गॉन। उसमें भी 7-8 स्पीसीज विदेशी मछलियां इन कर गई। और ये विदेशी मछलियां क्या करती हैं कि यहाँ के स्वदेशी मछलियों के चीरे को खा करके उस नस्ल को बर्बाद कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे रिवर इकोसिस्टम के लिए, जिसमें आप जितने कंसर्न लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब लोगों को ये दिमाग में ये बात आनी चाहिए, हाउ टू कंजर्व ऑल दिस स्पीसीज ऑफ रिवर गंगा इकोसिस्टम। उसके बाद ओटर जिसको आप उदबिलाव बोलते हैं, ये भी बड़ी यूनिक पौना है हमारे गंगा रिवर सिस्टम में। पटना के पास जब मैं रिसर्च कर रहा था 90s में, तो मैंने देखा है कि पटना के पास भी हम उदबिलाव को देखते थे, उदबिलाव मिलता था। और आज भी ज्यादा कदा गंडक और गंगा के मुहाने पर मिलता, लेकिन उसका हैबिटेट लगभग समाप्त हो गया। वो गंगा के सीधे वर्टिकल कटान जहाँ रहता है, इरोजन साइड, वहां पर छेद बना करके उसमें रहता है। लेकिन आजकल सभी लोग सभी जगह पर जा रहे हैं, चाहे वो मछुआ हो, किसान हो, आम पब्लिक हो, सब लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी बन गई। पटना के पास RFT बन गए, अब इतना अच्छा किनारा बन गया, इतना अच्छा रोड बन गया, इतना अच्छा कुछ एक्वेरियम बनने जा रहा है कि पूरा का पूरा पटना के पास से गंगा रूट करके हाजीपुर चल रहा है। ये मुख्य तौर पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के रिवर सिस्टम में पाई जाती है। उनकी आबादी बहुत ही कम रह गई है, उनकी कुल आबादी लगभग 3000 से 3200 है। लेकिन हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि इस पूरी आबादी का लगभग आधी गंगा में, बिहार में बक्सर से लेकर कहलगांव के बीच में पाई जाती है। बिहार के ही प्रयास से वास्तविक रूप से देखा जाए तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के ही प्रयास से गंगे डॉल्फिन को प्रधानमंत्री द्वारा 2009 में 5 अक्टूबर को नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में घोषित किया गया और इसकी अधिसूचना मई 2010 में जारी हुई। इसी दिन के को याद करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कार्यक्रम हमने 2012 से शुरू किया है। हम इस राष्ट्रीय परिसंपत्ति को जो बिहार में है उसको बचाना हम सभी का, हम सभी बिहारवासियों का कर्तव्य है। हमारे लिए ये गौरव का विषय है, हम सभी का ये दायित्व है, हम इसे बचाते हैं। करंट कितना ज्यादा रहता है कि वहाँ प्रोवाइड नहीं है। ये छोटी छोटी नदियों में या फ्लड प्लेन में जहाँ शैलो वाटर होता है वहाँ चले जाते हैं। वहाँ दो तरह की, एक तो इनको सिक्योरिटी मिलती है, पानी अच्छा मिलता है, और दूसरा इनको खाना बहुत बढ़िया मिलता है। तो इसलिए ये छोटी सी डोक नदी में इन कर रही थी और अचानक, अच्छा डॉल्फिन में एक और ब्यूटी और विशेषता ये है कि इनको पता हो जाता है कि अब पानी घटने वाला है, अब पानी नदी में नहीं है। तो ये जितना जल्दी हो सके अपने मेन हैबिटेट में आना चाहिए। और उसी क्रम में जब ये लौटने लगते हैं तो ना अप स्ट्रीम में ना डाउन स्ट्रीम में किसी पूल में ये स्ट्रैंडेड जब हो जाते हैं तो इस तरह का केस बनता है और फिर हम लोगों को वहाँ दौड़ करके जाना पड़ता है। वहाँ भी यही स्थिति हुई थी। वहाँ के स्थानीय लोग इसको मार देना चाहते थे। हम लोगों ने जाकर के वहाँ 7-8 दिन सामने टेंट लगा करके एवरी डे हम लोग वहाँ रात में सोते थे कि लोग इसको डिस्टर्ब न करें। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल था और इसकी खबर मेनका गांधी तक चली गई 2013 में। और मेनका गांधी दिल्ली से मॉनिटर कर रही थी कि अगर कोई घटना घटे तो इन लोगों को हम सस्पेंड करें, डिस्चार्ज करें। लेकिन सक्सेसफुली हम लोगों ने बहुत बढ़िया से ये किया। ये 1993 की बात बोल रहा हूँ। ये इसके साथ दूसरी घटना। तो मंत्रालय का बार बार आ रहा था निर्देश कि आप क्या कर रहे हैं, हमको हर एक 1-2 घंटे पर न्यूज दीजिए। तो
यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बार बार न्यूज दे रही थी, और न्यूज देने के क्रम में हम लोग डरे हुए थे कि अगर कहीं कैजुअल्टी हो गई डॉल्फिन के साथ तो फिर हम लोगों का नाम खराब होगा। लेकिन सक्सेसफुली हम लोगों ने दोनों डॉल्फिन को वॉच किया। उस पूल में एक भी मछली नहीं था। जब हमने देखा इसको खाने का कुछ भी नहीं रहा, तो फिर बाहर से जिंदा मछली 5 केजी, कभी 6 केजी, कभी 7 केजी उस पूल में डालते थे। और ये 3-4-5 दिन में हमने देखा कि जहाँ पर जिस नाव से मछली डालते थे उसको खाने के लिए, तो दौड़ करके मछली खाने के लिए डॉल्फिन आ जाते थे। तो इस तरह का एक हम लोग एक इसी को देख करके यहीं पर इस सेंटर के ठीक बगल में जहाँ गंगा नदी है, पंतारा की टीम आई थी गुजरात से, तो लोगों के साथ हम लोग लगभग 105 करोड़ रुपए का एक सेमी कैपेसिटी बना करके और डॉल्फिन को रख करके, जो कि इंजर्ड डॉल्फिन है उसको रेस्क्यू कर करके यहाँ ला दें, उसको ब्रीडिंग कराएं। और ब्रीडिंग का अगर सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर लोगों को देखने के लिए और हम लोगों का रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखने की आवश्यकता है। तो ढेर सारी बातें हैं। दूसरी चीज ये है, आप लोगों को एक और बता दूं, जो कछुआ की बात चली, जो जिसको सॉफ्ट सेट टर्टल कहते हैं, सॉफ्ट सेट टर्टल सिर्फ कर्कश इसको ट्रीट करती है। इवन ह्यूमन बीइंग अगर मर गया और वो फ्लोट कर रहा है नदी में, तो उसको भी ये सॉफ्ट सेट टर्टल, जो मुलायम कवच वाली कछुआ है, वो खाते हैं। कर्कशिस को तो खाते ही हैं, जो भी बैल गाय सब मरे हुए मिलते हैं उसको तो खाते ही खाते हैं। और इसी सॉफ्ट सेट टर्टल को ह्यूमन भी बड़ा चाव से खाता है, आदमी बड़ा बढ़िया से खाता है। तो इसलिए आप सब लोगों के मैं इशारा ये कर रहा हूँ कि अगर कहीं कोई कछुआ खाते हुए या जानकारी मिले, उन्हें मना करिए कि कई तरह के टॉक्सिक केमिकल्स आपके बॉडी में जा सकते हैं। समय को रोकने में बहुत बहुत धन्यवाद। Not just research and policies. It's about living rivers, thriving wildlife, and people working together to protect them.